लोगों का चेहरा चेंज कर दिता जाता है, कितना पॉसिबल है? जो इंडिया में हो रहे हैं 87% इंडियन पीपल को ही टारगेट बनाया जा रहा है एआई स्कैम्स के। अच्छा, पूरे देश चो? बिल्कुल। इमोशनली लोगों को वॉइस कॉल करके या वीडियो कॉल करके किसी अपने की आवाज़ में ही वो बात करते हैं, हमें लगता है कि रियल पर्सन है जबकि वो एक फेक पर्सनैलिटी होती है। मतलब लोगों दी भावनावां नाल खेडण लई एक नवीं टैक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है। मैनूं पता किवें लगदा है कि साडा क्लोज है, साडा बेटा है, सारा कुछ सोशल हैंडल। तो एआई इतनी स्ट्रॉन्ग होती जा रही है कि उन्हें डेटा रिसीव करने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बड़ी वड्डी चीज़ है जी कि आपकी तुसीं पूरी की शब्द पूरी कॉन्टैक्ट लिस्ट जो है वो फैच कर लेते हैं, हैक मतलब कर असीं सेफ नहीं हैगे बिल्कुल। सेंसिटिव डाटे तो किवें? डेबिट कार्ड का पिन नंबर दे दो या फिर पूरे मतलब क्रेडिट कार्ड का नंबर दे दो, इस तरह की डिटेल्स हैं। अब आप इमरजेंसी देख के कई बार मोस्टली होता है इंडियंस के साथ ये कर ही देते। वो लोग पहचानणगे किस तरह कि ये ठगी वाली है कि जन, क्योंकि कई बार जेन्युइन प्रॉब्लम भी हो सकती किसी की, बिल्कुल। किवें पहचानांगे? किवें पता लगेगा कि आईडी फेक है कि ओरिजिनल है? अगर ये फेक वेबसाइट है तो आपको कहीं ना कहीं कंटेंट में भी बहुत सारी स्पेलिंग एंड ग्रामर मिस्टेक्स मिलेंगी। ऑन एयर देख रहे हो, मैं हाँ अनुराग शर्मा। दोस्तों, जिस तरह कि अजकल टैक्नोलॉजी बहुत तेज़ी ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ और बहुत सारे लोग ਇਸ ਦਾ ਭਰਪੂਰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਾਂ ਬੱਚੇ ਤੇ ਯੁਵਾ ਪੀੜ੍ਹੀ ਇਸ ਦਾ ਭਰਪੂਰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਆਮ ਲੋਕ ਜੋ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਏਜਡ ਨੇ ਜਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਟੈਕਨੋਲॉजी ਦੇ ਵੱਲ ਹੱਥ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਨੌਜਵਾਨ ਇਸਤੇਮਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਨੌਜਵਾਨ ਜਾਂ ਉਹ ਵਰਗ ਜਿਹੜਾ ਘੱਟ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਪਤਾ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ, ਉਹ ਠੱਗੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਠੱਗੀ ਆਨਲਾਈਨ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਟੈਕਨੋਲॉजी ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਠੱਗੀਆਂ ਵੱਜਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ AI ਦੇ ਬਾਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਨਵੀਂ ਟੈਕਨੋਲॉजी ਡਿਵੈਲਪ ਹੋਈ ਹੈ, ਨਵੀਂ ਟੈਕਨੋਲॉजी ਆਈ ਹੈ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਠੱਗੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਪੜਾਅ ਆਇਆ। ਲੋਕ ਇਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਘੱਟ ਲੈ ਰਹੇ ਹੈ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਠੱਗਣ ਵਾਸਤੇ ਫਾਇਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਆਮ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਘੱਟ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜੇ ਠੱਗ ਹੈਗੇ ਆ ਜਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਠੱਗੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਵੱਧ ਖਿਆਲ ਹੈ, ਵੱਧ ਧਿਆਨ ਰੱਖ ਰਹੇ ਆ ਔਰ ਵੱਧ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਠੱਗੀ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨੂੰ ਹੜਪ ਰਹੇ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਸਾਰੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਸਕੀਏ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟੈਕਨੋਲॉजी ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦਾ, ਕੀ ਇਹਦੇ ਉਪਾਅ ਨੇ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਜੇਕਰ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ SEO ਦੇ ਐਕਸਪਰਟ, ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੇ ਐਕਸਪਰਟ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵਕਤ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਈਸ਼ਾ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। थैंक यू सो मच। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੇ ਥਰੂ ਠੱਗੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਇੰਟਰਨੈਟ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨਲ ਜਾਲ ਹੁੰਦਾ, ਅੰਦਰੂਨੀ ਜਾਲ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਲੋਕ ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਛਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕੁਝ ਲੋਕ, ਪਰ ਕੁਝ ਇਸ ਦਾ ਬੁਰਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਠੱਗੀ ਦੇ ਜਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਾ ਰਹੇ ਆ। AI ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਨੈੱਟਾਂ ਬਾਰੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਚੁੱਕਿਆ। AI ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਟੈਕਨੋਲॉजी ਆਈ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਭਰਮ ਨੇ, ਬੜੇ ਵਹਿਮ ਨੇ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਆਖਰ AI ਹੈ ਕੀ ਚੀज़? एआई स्कैम्स सर वो सारे स्कैम्स हैं जिसमें कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक टेक्नोलॉजी होती है जिसे यूज़ किया जाता है। इसमें मशीन लर्निंग का जो एल्गोरिथम है वो यूज़ करके, मैथमेटिकल इक्वेशंस यूज़ करके किसी भी मशीन को हम इतना काबिल बना सकते हैं कि वो बिल्कुल ह्यूमन माइंड की तरह ही सोचने लगती है, ह्यूमन माइंड की तरह ही वो रिएक्ट और एक्ट करने लगती है। अच्छा, मतलब एक मशीन आदमी ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। बिल्कुल सर। ਅੱਛਾ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸਕੈਮ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਠੱਗੀ, ਇਹ ਬੜੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਨੇ। ਆਡੀਓ ਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈ ਇਹ? सर एआई स्कैम्स में बिल्कुल बहुत सारे स्कैम्स आ रहे हैं सामने, लेकिन इनमें सबसे ज़्यादा जो इंडिया में हो रहे हैं 87% इंडियन पीपल को ही टारगेट बनाया जा रहा है एआई स्कैम्स के। अच्छा, पूरे देश चो? बिल्कुल। ओवरऑल वर्ल्ड में 87%, क्योंकि इंडियंस ही सबसे ज़्यादा इमोशनल होते हैं और एआई स्कैम में सबसे ज़्यादा गेम ही इमोशन का है। इमोशनली लोगों को वॉइस कॉल करके या वीडियो कॉल करके किसी अपने की आवाज़ में ही वो बात करते हैं, हमें लगता है कि रियल पर्सन है जबकि वो एक फेक पर्सनैलिटी होती है। मतलब ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਖੇਡਣ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਟੈਕਨੋਲॉजी ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਵਾਜ਼ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ, ਜੋ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਫਿੰਗਰਪ੍ਰਿੰਟਸ ਨੂੰ ਜਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਲੱਗਦਾ ਕਾਪੀ ਕਰਨਾ। ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮਿਮਿਕਰੀ ਆਰਟਿਸਟ ਕਾਪੀ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ,
पर ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ कि आवाज़ भी कॉपी कर लेंदी है? बिल्कुल सर, किस तरह? बिल्कुल सर, इनके सॉफ्टवेयर्स हैं, उन सॉफ्टवेयर्स को बनाया ही इसी तरह से गया है कि ये लोग ये इसमें क्या है, आप एक रिकॉर्डिंग दे दीजिए उनको, सेम हूबहू दूसरी रिकॉर्डिंग रेडी हो जाएगी, जो कि आवाज़ आपकी होगी लेकिन शब्द दूसरे होंगे। ਬੜੀ ਮਤਲਬ ਦੇਖਣ ਸੁਣਨ ਤਾਂ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਚੀਜ਼ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਵੀ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ Scams ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਰਹੇ 87% ਹਨ, ਲੋਕ ਹਾਂਜੀ। ਸਾਡੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਠੱਗੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼, ਦੇਖੋ ਇਹ ਸੁਣਿਆ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ ਕਾਲਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਫਲਾਣੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ, बिल्कुल ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਹੀ ਬੰਦੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੋਵਾਂਗਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਫਟਾਫਟ ਉੱਥੇ ਪੈਸੇ ਭੇਜੋ ਜਾਂ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਰੋ, बिल्कुल ਤੇ ਲੋਕ ऐसा ਪਵਾ ही हो ਦਿੰਦੇ। रहा ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਵੀ ਆ ਰਹੀਆਂ। बिल्कुल अभी रिसेंटली हुआ है एक लेडी के साथ, उसने 1,40,000 रुपए ये समझ के कि उसके कनाडा वाला नेफ्यू है, किसी प्रॉब्लम में है, उसने इतनी अर्जेंसी दिखाई, एक वॉइस कॉल आया और उन्होंने बिलीव करके उसके अकाउंट में 1,40,000 डिपॉजिट करा दिए। बाद में पता चला कि उस नेफ्यू ने तो कॉल ही नहीं किया था, वो कोई स्कैम था जिसके जाल में वो फंस गए। ਇਹ ਤਾਂ ਆਡੀਓ ਹੋਗੀ ਜੀ, ਕਾਪੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਵੀਡੀਓ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਆ? ਇੱਕ ਐਕਟਰਸ ਦੀ ਆਈ ਵੀਡੀਓ ਕਿ ਧੜ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ ਸੀ, ਫੇਸ ਉਸ ਦਾ ਲਗਾਤਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ 2-3 ਆ ਗਈਆਂ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਫਿਲਮੀ ਸਿਤਾਰੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚਿਹਰੇ ਲਗਾਤੇ, ਸ਼ਾਹरुख खान ਦਾ, सलमान खान ਦਾ, है ना? ਇਹ ਵੀਡੀਓ इसे ਕਿਵੇਂ? सर डीप फेक टेक्नोलॉजी बोलते हैं, ये भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ही पार्ट है। और इसमें क्या किया जाता है कि आप ही के सोशल हैंडल पे जो आप लोग अपने बच्चों की या खुद की डेली आप लोग पोस्ट करते हो, अपने फोटोज डालते हो, वीडियोस डालते हो, वहीं से ही डीप फेक को डेटा दिया जाता है और वो हूबहू उसी को कॉपी करके फिर आपको इमोशनली जो है वो वीडियो कॉल करते हैं, या तो आपका सेंसिटिव डेटा लेने के लिए या फिर आपसे जो है मनी मेकिंग के लिए वो आपको वीडियो कॉल करते हैं। और आपको रियली में ये लगता है कि यार ये तो मेरा ही फ्रेंड है या ये मेरा ही बेटा है, किसी मुसीबत में है या बेटी है। इसी तरह से आपके जो क्लोज रिलेटिव हैं उन्हीं की ही आवाज़ में या वीडियो में वो आपको कॉल करते हैं। मैडम इन्होंने पता किमें लगता है कि साडा क्लोज है, साडा बेटा है, सारा कुछ सोशल हैंडल? सर कॉन्टैक्ट्स तो हम मतलब जो भी हम सेव करते हैं ना, आज के टाइम में हम लोग क्या करते हैं, अपनी ईमेल में डेटा डाल देते हैं या कहीं भी सेव कर देते हैं डेटा को। ऑनलाइन तो रहता ही है वो डेटा, और आपको कस्टमर केयर वालों के भी कॉल आते हैं, तो है ना, आप उनको किसी अपने को आपने जो सबसे ज़्यादा ट्रांजेक्शन की होंगी वहाँ से भी वो डेटा पिक कर लिया जाता है। मतलब एआई इतनी स्ट्रांग होती जा रही है कि उन्हें डेटा रिसीव करने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं आती। बड़ी वड्डी चीज़ है जी कि आपकी ਤੁਸੀਂ पूरी की शब्द पूरी कॉन्टैक्ट लिस्ट जो है वो फैच कर लेते हैं, हैक मतलब कर ਅਸੀਂ ਸੇਫ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। लेते हैं। बिल्कुल ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਚੱਕ ਸਕਦੇ ਆ, ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਡਾਟਾ ਚੱਕ ਸਕਦੇ ਆ। ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਡਾਟੇ ਤੋਂ ਕੀ मतलब है? सेंसिटिव डेटा का ये मतलब है कि जैसे या तो वो आपको कहेंगे कि आप पे करिए, मैं इस प्रॉब्लम में हूँ, या किसी ने कॉल कर दिया कि आपके बेटे का यहाँ पे एक्सीडेंट हो गया और इमीडिएटली आप एक काम करिए, मेरे अकाउंट में पे कर दीजिए, ठीक है। या फिर अगर कोई उनको लगता है ये तो इमीडिएटली पेमेंट कर नहीं सकते, तो वो आपसे बोलेंगे कि ठीक है मैं आपको OTP शेयर कर रहा हूँ, या वो ये कर सकते हैं कि बोलेंगे कि आप अपने ATM या डेबिट कार्ड का पिन नंबर दे दो, या फिर पूरे मतलब क्रेडिट कार्ड का नंबर दे दो। इस तरह की डिटेल्स हैं। अब आप इमरजेंसी देख के, कई बार मोस्टली होता है इंडियंस के साथ, ये कर ही देते हैं। ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਜਾਲ ਵਿਛਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਠੱਗੀ ਕਰਨ ਦੀ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰੋ, ਆਪਣੀ ਨਿੱਜੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਤਸਵੀਰਾਂ, ਨਾਰਮਲ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਮ ਅਸੀਂ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਿਚਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਵੀਡੀਓ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਬਣਾ ਕੇ ਕਿਊਟ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਸੇਫ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਸੋ ਇਹ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਨੈਟਵਰਕ ਹੈਗਾ, ਬੜੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਇਮੋਸ਼ਨਲੀ ਵੀ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸੋਰਸ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਆਪਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੋਰਸ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਖੇਡ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਮਨੀ ਐਂਟੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪੈਸੇ ਦੀ ਠੱਗੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਵੀ किस्म ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਲੈਕमेल ਕੀਤਾ जा सकता है। चैट जीपीटी आजकल सब लोग यूज़ कर रहे हैं कि चलो कंटेंट सीखेंगे कैसे बनता है, या हमने जो लिखा हम उसे रीराइट करवा लेते हैं, उससे एडिट करवा लेते हैं, इजीली हमारे लिए इजी हो गया। लेकिन उसका भी ये नुकसान है कि बहुत सारे लोग जिन्होंने फ्रॉड करना है, जिनको पहले नहीं समझ में आता था इंग्लिश में कैसे लिखे, कैसे एक अच्छी खासी बायो बनाएं कि सोशल प्रोफाइल में खुद को एक पर्सनैलिटी दिखाना है, तो वो लोग वहाँ से इमीडिएट मतलब ईज़िली वो लोग वहाँ से डेटा बनवा लेते हैं चैट जीपीटी से, और उसे एज इट इज़ कॉपी पेस्ट करके यूज़ करके एक अपनी ऐसी बायो क्रिएट करते हैं। या फिर सबसे ज़्यादा हो रहा है फेक न्यूज़ फैलाने में चैट जीपीटी का बहुत बड़ा हाथ है, जिसे यही स्कैमर्स यूज़ करते हैं। ਬੜੀ ਡੂੰਘੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਇਹ, ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਸਮਝਣ ਲਈ। ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਇਸ਼ਿਕਾ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਪਛਾਣਾਂਗੇ? ਆਮ ਬੰਦਾ ਕਿਵੇਂ? ਦੇਖੋ ਨੌਜਵਾਨ ਥੋੜੇ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੌਲੇਜ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ,
ਉਹਨੂੰ ਕੰਮਕਾਰ 'ਚ ਇੰਨਾ ਉਲਝਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਉਹ ਮੈਸੇਜ ਵੀ ਐਂ ਕਲਿੱਕ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕਮੈਂਟ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਆਂਦਾ ਲਿੰਕ ਵੀ ਕਲਿੱਕ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਲੋਕ ਪਛਾਣਨਗੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਠੱਗੀ ਵਾਲੀ है कि जन, क्योंकि कई बार जेन्युइन प्रॉब्लम भी हो सकती है किसी की, किवें पछाणांगे? सर देखो मैं बताती हूँ कि एआई बनाई तो इंसान नहीं है, तो यानी कि ह्यूमन ब्रेन से ज़्यादा इंटेलिजेंट तो एआई भी नहीं हो सकता, ठीक है। तो अब क्या है, जो भी पर्सन आपको वीडियो कॉल करके है ना और रो रहा है या इमोशंस दिखा रहा है और आपको लग रहा है कि ये किसी प्रॉब्लम में है, बस उस टाइम पे थोड़ा सा आपको अटेंशन ध्यान से क्या देना है कि ये जो है पर्सन वीडियो कॉल कर रहा है किसी डार्क लाइट में तो नहीं कर रहा, क्योंकि वो एक रोबोटिक फेक पर्सनैलिटी है। वो कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चीज़ें करेंगे जैसे कि वो पलके या तो ज़्यादा झपकाएंगे या फिर कम, या फिर मूवमेंट उनकी जो गर्दन का है बहुत कम होगा या फिर बहुत ज़्यादा होगा। लेकिन वो कई बार हम घबरा जाते हैं ऐसा कॉल रिसीव करके, तो हम नहीं नोटिस करते। लेकिन अगर हम ध्यान से देखेंगे तो आपको हल्का हल्का थोड़ा थोड़ा लगेगा कि पर्सन तो वही है, हमारा ही है अपना, लेकिन ये थोड़ा रोबोटिक टाइप इसके फेशियल एक्सप्रेशन है। तो थोड़ा सा उसके फेशियल एक्सप्रेशन को आपने फॉलो करना है, उसके बॉडी के मूवमेंट देखने हैं जब वो वीडियो कॉल कर रहा है। दूसरा, वो डार्क लाइट में कॉल कर रहा है, देन डेफिनेटली आप उसको कनेक्ट कर दो। अगर आपको लग रहा है कि भी नहीं किसी अपने का ही था, तो आप उसे उसके नंबर पे कॉल करके एक बार और तसल्ली कर लो कि भाई ये उसी का कॉल था या फिर ये कोई फेक एआई कॉल थी। बहुत अहम जानकारी ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਮੈਡਮ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਦਿਮਾਗ ਹੁੰਦਾ, ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ 'ਚ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲਾ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹੀ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਸਵੀਰ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਹੋਵੇ ਆਡੀਓ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ ਤੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋਵੋ, ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਨੋਟ ਕਰੋ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਡਮ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਨੋਟ ਕਰਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਨੋਟ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਕਿ ਵਾਕਈ ਤੁਹਾਡਾ ਬੰਦਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਫੇਕ ਹੈ। ਹਾਂ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਆਈਡੀਆ ਦਿੱਤਾ कि तुसी फोन कट दो, उस वक्त उन्होंने हामी भर के फोन कट दो, उस तो बाद बैक कॉल उन्होंने कांटेक्ट ते करो, जेड़ा पर्सनल कांटेक्ट ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ। कॉल आते हैं ना सर, ये किसी नए नंबर से ही आते हैं, पर्सनालिटी आप ही के नॉन पर्सन की होगी, लेकिन नंबर शायद हो सकता है कि उसका नहीं होगा, नंबर कोई और होगा। तो ध्यान से आपको नंबर भी देखना है कि लोकली नंबर है, उसी पर्सन का नंबर है या फिर ये आपने उस पर्सन को देख के एकदम ये नहीं ट्रस्ट कर लेना कि यही है। और बस थोड़ा सतर्क रहन ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਸਤਰਕ ਹੋ ਜਾਓ ਉਸ ਵਕਤ। ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਇਹ ਤੋਂ ਹੁਣ ਬਚੀਏ ਕਿਵੇਂ? ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਤਾ ਵੀ ਇਦਾਂ ਕਰੋ, ਪਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਈਮੇਲਸ ਨਹੀਂ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਦੋਸਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਚੈਟ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਲੜਕੀਆਂ ਕੁਝ ਵਲਗਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾ ਕੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਵਲਗਰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਲੈ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਤੰਗ ਕਰਦੀਆਂ, ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਮੰਗਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਥੇ ਪਟਿਆਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਾਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਾਇਰਲ ਵੀ ਹੋਈਆਂ। ਸੋ ਉਹ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਪਛਾਣੀਏ ਜਾਂ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਆਈਡੀ ਫੇਕ ਹੈ ਕਿ ਓਰੀजिनल है? तो सर सोशल प्रोफाइल में आपको सबसे पहले तो अननोन नंबर से कोई भी वीडियो कॉल अटेंड नहीं करना बिल्कुल भी। और दूसरी चीज़, आप किसी की भी फ्रेंड रिक्वेस्ट करने से पहले, एक्सेप्ट करने से पहले आप एक बार उसका अकाउंट अच्छे से चेक करिए। अकाउंट चेक करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले तो अगर उसका लॉक प्रोफाइल है कोई ज़रूरत नहीं है फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करने की, ठीक है। अगर वो पर्सन आपको कॉल करके कहेगा भाई आपने मेरी फ्रेंड रिक्वेस्ट, कहना कि नहीं एक्सेप्ट नहीं कर सकते, पहले आप अपना ये जो प्रोफाइल लॉक किया है उसे हटाएं। क्योंकि लोग लॉक प्रोफाइल कर देते हैं, उसके बाद हमें लगता है कोई नहीं चलो एक्सेप्ट कर लो, जबकि हमें ज़रूरत है उसके फ़ोटोज़ चेक करने की, हमें उसके साथ साथ उसकी फ्रेंड लिस्ट भी देखनी है कि वो लोकल है या ग्लोबल है। वर्चुअल फ्रेंड भी देख सकते हैं डेफिनेटली। उसमें लोकल या जो इस तरह के फेक प्रोफाइल्स होते हैं उनका एक ये भी है कि आप ये देखें वो बनी कब है। मतलब ये मेनली क्या होती है, न्यू प्रोफाइल्स होती हैं जो हमने स्पेशली बनाई है किसी को चीट करने के लिए, है ना। तो ये न्यू प्रोफाइल्स होंगी, इनको एक्सेप्ट करने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा, आप ये भी चेक करें कि उनके जो फ़ोटोज़ हैं वो मतलब किस तरह की पोस्ट उन्होंने शेयर किया है, वो रियल पर्सन ने किसी ने अपनी फ़ोटो डाली भी है या नहीं, या जस्ट इधर उधर से नेट से डाउनलोड करके फ़ोटोज़ डाले हैं। तीसरा पॉइंट ये है कि आपको ये भी देखना है कि उसकी फ्रेंड लिस्ट किस तरह के फ्रेंड्स हैं उसके पास। उसके अलावा अगर आपको जिस तरह से वेबसाइट है, आपको कोई लिंक शेयर किया आपके किसी फ्रेंड ने और आप भी क्लिक कर रहे हैं कि चलो गेम खेलेंगे, या फिर आप कोई क्विज़ या पज़ल सॉल्व करने के लिए आपको किसी ने लिंक शेयर कर दिया, तो आप उसे ओपन करने से पहले या वैसे तो आपको इस तरह की चीज़ें सर्वे वगैरह वाले लिंक ओपन करने ही नहीं होते हैं, बट अगर आपने किया तो आपको पता होना चाहिए कि वो जो वेबसाइट है वो रियल है या फेक, वो हम कैसे आइडेंटिफाई करें जी। उसमें हम सबसे पहला पॉइंट ये देखेंगे कि ये HTTP से शुरू है या फिर HTTPS से शुरू है। अगर तो HTTPS लगा हुआ है, इसका मतलब वो एक सेफ प्रोटोकॉल वाली वेबसाइट है, आप उसे ओपन कर सकते हो। दूसरी चीज़, अगर आपको इन्फॉर्मेशन के लिए भी कोई वेबसाइट ओपन करनी है गूगल से, तो ये उसके लिए भी है। दूसरा, डोमेन नेम
ऐसी जो फेक वेबसाइट्स होती है, इनके डोमेन नेम ब्रांडेड जो वेबसाइट्स हैं, जो बड़े बड़े ब्रांड्स के लिए बनाई हुई वेबसाइट्स हैं, उनको फॉलो करते हैं। कुछ मिलते जुलते होते हैं, लेकिन आप ध्यान से स्पेलिंग देखिएगा, उसमें फ़र्क होगा जी। सपोज जैसे किसी ने एक वेबसाइट बना ली amazon.com, आपको लिंक शेयर किया, आपने भी सोचा इतने सस्ते प्रोडक्ट चलो हम बाय करते हैं, लेकिन आप पहले होल्ड ऑन करके चेक करिए कि क्या ये अमेज़ोन ही है। क्योंकि अभी एक अमेज़ोन की फेक वेबसाइट बनाई गई थी, क्योंकि स्पेलिंग है अमेज़ोन की AMAZON, लेकिन उस फेक वेबसाइट का जो नेम था वो ये था AMAZ0N, यानी कि ओ जैसी साउंड करेगा वहाँ पे वो, लेकिन उसकी स्पेलिंग मिस्टेक है, यानी कि वो एक फेक वेबसाइट थी जहाँ से काफ़ी लोगों ने ऑर्डर किया और उसके बाद वो वेबसाइट बंद भी हो गई, प्रोडक्ट कस्टमर तक पहुँचा ही नहीं। ਮਤਲਬ ਬੜੀ ਬਰੀਕੀ ਨਾਲ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਇੰਟਰਨੈਟ, ਜੇਕਰ ਕਹਿ ਦਈਏ ਹੈ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਗੈਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਲਿੰਕ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਕਈ ਵਾਰ ਕੋਈ ਫੋਟੋ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਲਿੰਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਕਈ ਵਾਰ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਫਟਾਫਟ ਉਹਨੂੰ ਓਪਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਓਪਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇਜ਼ੀ ਵੱਲ ਅਸੀਂ ਠੱਗੀ ਵੱਲ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ दूसरी चीज़ जैसे अभी एक हमारे ही नॉन में हुआ था कि उन्होंने पासपोर्ट के लिए एक वेबसाइट को फॉलो अप किया, वो पासपोर्ट उन तक पहुंचा नहीं था, उन्होंने फॉलो किया, उस वेबसाइट को ओपन किया। तो आपको वहाँ क्या देखना है सबसे पहले कि ये वेबसाइट अगर आपको चेक करना है सही है या गलत, आप उसका जो कॉन्टैक्ट का पेज होता है उसे चेक करिए, एक सही एड्रेस उसमें है एक्चुअल में। ये एड्रेस भी फेक ही होते हैं जी। और दूसरा फ़ोन नंबर, पहले फ़ोन नंबर डायल करके आप उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन को वेरीफाई करिए कि हाँ ये इस लोकेशन पे है या नहीं है। आप गूगल, उनका जो मैप है गूगल मैप पे उनका पूरा एड्रेस वो भी ले सकते हैं। उसके अलावा अगर ये फेक वेबसाइट है तो आपको कहीं ना कहीं कंटेंट में भी बहुत सारी स्पेलिंग एंड ग्रामर मिस्टेक्स मिलेंगी। मतलब वो ऐसे ही बनाई होती हैं, जल्दबाजी ਚ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ। जल्दी में बस कॉपी पेस्ट करके डेटा। ਅੱਛਾ ਚਲੋ ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਰੀਏ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੋਰ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਫਰਾਡ ਹੋ ਹੀ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਤੀਆਂ, ਇਹ ਫਰਾਡ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਲਾਸਟ ਮੂਮੈਂਟ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਠੱਗੇ ਗਏ ਜਾਂ ਠੱਗੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਆ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ करना है? फिर इमीडिएटली जब ठगी हो गई उसके बाद तो एक दो चार हमें जो चीज़ें याद रखनी है। पहला ये कि आपको इमीडिएटली 1920 पे कॉल करना है, जो कि साइबर क्राइम वालों का नंबर है इंडिया में। उसके अलावा अगर आप कॉल नहीं कर सकते तो इनकी वेबसाइट भी है cybercrime.gov.in, आप वहाँ पे भी अपनी कंप्लेन रजिस्टर करा सकते हो। ये काम इमीडिएटली करने हैं जी, विदिन 3 डेज। और उसके अलावा जिस प्लेटफॉर्म से भी आपने पेमेंट किया है, जैसे कि फेसबुक हो गया, गूगल पे हो गया, पेटीएम हो गया, मतलब जिस भी प्लेटफॉर्म से आपने अमेज़ॉन पे से किया है, तो आपको उस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म से जाके भी रिपोर्ट करनी है। आप अपने ट्रांजैक्शंस में जाइए, सेलेक्ट करिए, वहाँ हेल्प एंड सपोर्ट सेक्शन में आपको रिपोर्ट वाला कॉलम मिलेगा, वहाँ से आपको बताना है कि क्या प्रॉब्लम हुई है और ये एक गलती से की गई पेमेंट है, आप वहाँ से रिपोर्ट करिए। अच्छा। उसके अलावा बैंक में भी जाके अगर टाइम है तो आप सेम डे नहीं तो नेक्स्ट डे बैंक में जाके भी आप ये जो पेमेंट है इसको रुकवा सकते हैं। जी। ਸੋ ਬੜੀ ਅਹਿਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਈਸ਼ਾ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅੱਜ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਗਰ ਠੱਗੀ ਹੋਗੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮਤ ਹੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿਸਮਤ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲਗਾ ਕੇ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਵਰਤ ਕੇ ਉਸ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਰ ਚਾਂਸ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕੇਸ ਦੇਖੇ ਆ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇਖੀਆਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਭਦਾ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਲੱਗਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਕੰਪਲੇਂਟਸ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਆਪਾਂ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਹਾਂ, ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਹੱਥ ਵੀ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਦੇਖੇ ਆ ਕਿ ਕੁਛ ਮਿਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਨੈਟਵਰਕ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਨੈਟਵਰਕ ਦੇ ਥਰੂ ਗਲਤ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਅਕਾਊਂਟ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੈਸਾ ਮੰਗਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ 'ਤੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਪੈਸਾ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ। ਹਾਂ ਕਿਸੇ VIP ਦਾ ਅਗਰ ਕੁਝ ਗੁੰਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਫਿਰ ਉਹ 24-48 ਘੰਟੇ 'ਚ ਵੀ ਲੱਭ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਆਮ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕਦੇ ਵੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਅੱਜ ਤੱਕ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਕੇਸ ਦੇਖੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ। ਕੁਛ ਕੇਸ ਹੈਗੇ ਆ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਔਰ ਦਿਮਾਗ ਲਗਾਇਆ ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਕਿਤੇ ਉਹ ਸੋਲਵ ਹੋਏ ਆ। ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਵੀ ਅੱਜ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਮਾਂ ਹੈ ਔਰ ਕਿੱਡੀ ਕੁ ਵੱਡੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਚਾਂਸਿਸ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਆਪ ਵੀ ਆਪਣੇ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਡੀ ਵੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ, ਬੇਧੜਕ ਕਰੋ, ਪਰ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿ ਕੇ ਕਰੋ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰੋ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕੁਛ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਲਾਲਚ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕੁਛ ਚੀਜ਼ਾਂ ਐਸੀਆਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ, ਸੋ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਾਂ।
ਸੋ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਰਚ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਲਿੰਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਠੱਗੀ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਆ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਨਿਗਾਹ ਰੱਖ ਕੇ ਬੈਠੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਫਸਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਈਸ਼ਾ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਨੇ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਤਰਕ ਰਹੋਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਰਕ ਰਹਿਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਬਚ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਐਕਸਪਰਟ ਨੂੰ ਬੁਲਾਵਾਂਗੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹੋ ਔਨ 에ਅਰ ਦੇ ਨਾਲ।